Okay, so today we have to discuss about the mirror formula. So at the first, we should know what is mirror formula and when a mirror formula is used, what is the ray diagram. So at the first, we'll draw the ray diagram. So tell me that which mirror is this? Concave. Concave mirror, and this line is known as principal axis. Okay. Okay, now consider that an object is placed at this point. An object AB is placed at this point. Consider that this is point is known as focus and this point is known as center of curvature. Okay, so we know very well that when we have to draw an image, so at the first we should draw a line, a ray of light parallel to the principal axis, something like this, parallel to the principal axis. So if this light is parallel to the principal axis, so from which point it will pass after reflection? Focus. Focus, very good. So this light will pass through the focus, something like this. Okay. And if we talk about another ray of light is incidenting through center of curvature, something like this. Okay. This light is incidenting through center of curvature. So what happens to this light? It will retrace its path. Retrace its path. बहुत बढ़िया. It will retrace its path, something like this. Okay. So we can see that at the point where both reflected rays intersect each other, an image and a real image is formed. So at this point, the image is formed. Okay. So consider that this point is A dash and B dash. Okay. This point is known as focus. This point is known as center of curvature. This point is known as pole of mirror. This point is pole of mirror. Okay. And if we talk about the distance of object, distance of image and focal length, so we know very well that u is called the distance of, Object. very good. So u is the distance of object, v is the distance of Image. image. So in this diagram, we are seeing that object is placed at point this. So the distance from point A to P is denoted by u, because object is placed at some distance u from the pole of mirror. Okay. And we are seeing in this diagram that this is the image. So image is formed at a distance v from the pole of mirror. Tell me one thing, why I am saying again and again from the pole of mirror, from the pole of mirror? Why we are measuring all the distances from pole of mirror? हम पोल से क्यों मेजर कर रहे हैं सारी डिस्टेंसेस को? सर क्योंकि पोल के इस साइड रियल होता है और इस साइड वर्चुअल, तो वो उनके बीच का होता है डिस्टेंस. ऐसा नहीं है, बिकॉज पोल इज ट्रीटेड एज ऑरिजिन. कल मैंने आपको साइन कन्वेंशन पढ़ाया था ना, एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस, तो ये ऑरिजिन होता है. ठीक है. तो इसलिए हम लोग जो है पी को पोल मान लेते हैं, पी को पोल तो मानते हैं, मतलब पी को ओरिजिन मान लेते हैं, पोल को ओरिजिन मान लेते हैं. इसलिए हम सारी डिस्टेंसेस को ओरिजिन से मेजर करते हैं. दैट्स व्हाई वी आर मेजरिंग ऑल द डिस्टेंसेस फ्रॉम पोल ऑफ मिरर, बिकॉज पोल इज ट्रीटेड एज ओरिजिन. ओके. एंड वी नो वेरी वेल द डिस्टेंसेस at the left side of the origin are taken as negative, and the distances at the right side of the origin are taken as positive. Okay. Now this point is focus, so this distance will be focal length f. Okay. And this point is center of curvature, this point is center of curvature, so this distance will be capital R, radius of curvature. Are you getting me or not? Yes sir. Okay. All the distances are taken from the pole. Okay. So pole should be treated as origin. देखिए, अब देखो यहाँ पे सारी डिस्टेंस मैंने पोल से मेजर की है ना. Yes sir. ये देखो पोल से, पोल तक ही हमको लेना है ये सारी डिस्टेंसेस. ये देखो पोल से होके जा रही है ना ये लाइन. ठीक है. तो बस यहीं पे एक क्वांटिटी ये है हमारे पास, एक क्वांटिटी u है, एक क्वांटिटी v है और एक क्वांटिटी r है. इसी में ये रिलेशन होता है.
इसी में ये रिलेशन होता है। हालांकि हम इस फॉर्मूले को डेराइव भी कर सकते हैं, एट दिस टाइम वी कैन डेराइव दिस फॉर्मूला, बट हमें उसकी कोई जरूरत नहीं है इसको डेराइव करने की। ठीक है, आपको मेरा चैनल पता यस सर। है ना? तो मैंने क्लास 12th में ये चैप्टर है रे ऑप्टिक्स के नाम से, क्लास 12th में ये चैप्टर है जिसको हम लोग कहते हैं रे ऑप्टिक्स। तो मेरे चैनल पे रे ऑप्टिक्स नाम से एक प्लेलिस्ट बनी है। अगर आपको जानने की इच्छा है कि ये सर फॉर्मूला आता कैसे है, तो आप उस प्लेलिस्ट में जाके देख लेना, उसमें लिखा हो मिरर फॉर्मूला, तो वो मिल जाएगा। ठीक है, अभी हमको इसकी कोई नीड नहीं है क्योंकि ये हमारे सिलेबस का नहीं है, डेराइव करना हमारे सिलेबस का नहीं है। हमारे सिलेबस में सिर्फ फॉर्मूला है, तो हम लोग उसको ही सिर्फ पढ़ लेंगे। ठीक है, और फॉर्मूला ये क्लियरली लिखते कैसे हम लोग, वो लिखते ऐसे, मैं यहाँ पे बता रहा हूँ, 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u, ये फॉर्मूला लिखते हैं। और मैंने आपको एक फॉर्मूला और भी बताया था, अगर आपको याद होगा, कि फोकल लेंथ और रेडियस में भी एक रिलेशन होता है, f इक्वल टू r/2, याद है ना? यस सर। इसको अगर आप उल्टा कर देंगे, रेसिप्रोकल निकालेंगे, तो 1/f इज इक्वल टू हो जाएगा 2/r, 1/f इज इक्वल टू हो जाएगा 2/r। तो ये 1/f को हम क्या लिख सकते थे, और 2/r, हम इसको ये भी फॉर्मूले से लिख सकते थे। तो ये हमारा मेन मिरर फॉर्मूला आ चुका है, ये जो मैंने बॉक्स में यहाँ पे पैक कर दिया। ठीक है, यस। तो दिस इज अवर मिरर फॉर्मूला। और अब आपको यहाँ पे u को कैसा लेना है, नेगेटिव। ये तो कल मैंने बताया था आपको, u इज ऑलवेज नेगेटिव, u is always negative because all the objects are kept at the left side of the mirror in both the mirror. Okay, और कल मैंने एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात भी बताई थी आपको, फोकल लेंथ के बारे में बताया था कि फोकल लेंथ अगर हम कॉन्वेक्स की लेते हैं या कॉनकेव की लेते हैं, तो कॉनकेव की फोकल लेंथ नेगेटिव होती है या पॉजिटिव होती है? कॉनकेव की नेगेटिव और कॉन्वेक्स की पॉजिटिव। तो ये कैसे याद हुआ, पहले से याद कॉन था? एक्स साइन होता है तो वो हाथ प्लस बड़े, दिखाता हाथ बड़े, थम्स अप, याद हो गई देखो ट्रिक। है। यस सर। कॉन्वेक्स में एक्स है तो बस प्लस है यार, कॉनकेव बचा तो माइनस है, उसके अलावा तो कुछ है ही नहीं। ठीक है, बहुत बढ़िया, बस ऐसे ही रिस्पॉन्स देते रहो यार, अच्छा लगता है, मतलब पढ़ाने में मजा आता है। ठीक है, तो मैंने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया है, मैं आपको शेयर कर दूंगा ये डायग्राम वगैरह, क्योंकि यहाँ जो स्लाइड मैंने बनाई है उसमें कोई डायग्राम नहीं था। ठीक है, तो ये हमारा ये फॉर्मूला होता है, इसको हम लोग मिरर फॉर्मूला कहते हैं। इसमें सारी चीजें मैंने मेंशन करी हुई है कि v जो है वो क्या होता है, इमेज डिस्टेंस होता है, u क्या होता है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस होता है, और f क्या होता है, फोकल लेंथ होता है। ठीक है, और ये डिस्टेंस आप याद रखना कहाँ से मेजर करते हैं हम लोग, सारी डिस्टेंसेस मेजर करते हैं पोल से, पोल से मेजर करना है, पोल से इतनी डिस्टेंस पे, पोल से इतनी डिस्टेंस पे। इज इट ओके और नॉट? यस सर। Okay, so I am erasing this slide. Okay, now if we talk about the magnification of the spherical mirror. Okay, so at the first we should know how many types of spherical mirror are there in our syllabus. How many spherical mirror? Two. नाम क्या होते हैं उनके? कॉनकेव एंड कॉन्वेक्स। चलो याद है, ठीक है। सो इस मैग्निफिकेशन को हम कैसे शो करते हैं? वैसे इसमें मैंने सिर्फ लिख दिया था मैग्निफिकेशन, वैसे इसका कंप्लीट नेम क्या होता है, लीनियर मैग्निफिकेशन। इसको हम लोग कंप्लीटली लिखते हैं लीनियर मैग्निफिकेशन। क्या लिखते हैं? लीनियर मैग्नेट। इसको हम लोग कंप्लीटली लिखते हैं लीनियर मैग्निफिकेशन, ओके, ऑफ स्फेरिकल मिरर। तो क्या होता है, इट इज द रेशियो ऑफ द हाइट ऑफ इमेज टू द हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। और इसको हम लोग जो है ना स्मॉल m से शो करते हैं। मैं इसको ही एक्सप्लेन कर रहा हूँ यहाँ पे, ये मिरर फॉर्मूला खत्म हो चुका है, मैं यहाँ पे लीनियर मैग्निफिकेशन को एक्सप्लेन कर रहा हूँ। तो लीनियर मैग्निफिकेशन को हम लोग m से शो करते हैं। ठीक है, और इसके लिए हम लोग फॉर्मूला लिखते हैं द हाइट ऑफ इमेज टू द हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, HI/HO। ये दिस इज द फॉर्मूला फॉर लीनियर मैग्निफिकेशन, HI/HO। ओके, and there are some more formula. Another formula, m is equal to minus v upon u, m equal to minus v upon u, and v is the distance of image and u is the distance of object, you know very well। ठीक है, और माइनस साइन ये क्यों आता है, माइनस साइन ये फॉर्मूला जब हम ये डेराइव करते हैं ना, ये वाला फॉर्मूला जब हम डेराइव करते हैं तो उसमें माइनस साइन अपने आप से आ जाता है। ये सब आपको 12th क्लास में सारे जो भी टीचर पढ़ाएगा आपको, ठीक है, अगर मेरा और आपका कांटेक्ट बना रहा 2 साल तक तो फिर मैं ही पढ़ा दूंगा 12th, नहीं बना रहा कांटेक्ट तो बात अलग है। ठीक है, तो जो भी टीचर आपको पढ़ाएगा तो वो आपको ये डेफिनेटली बताएगा कि ये माइनस साइन कैसे आता है।
ठीक है, तो यहाँ पे जो लीनियर मैग्निफिकेशन है क्या हो जाएगा, इट इज द रेशियो ऑफ हाइट ऑफ इमेज टू द हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। मींस इमेज की हाइट कितनी है, ऑब्जेक्ट की हाइट कितनी है, उनका रेशियो निकाल दिया हम लोगों ने, उसको हम लोगों ने बोल दिया है लीनियर मैग्निफिकेशन। मेरे ख्याल से क्लियर हो गया। यस सर। चलो ठीक है, तो अभी मैं कुछ फॉर्मूले डेराइव करके आपको दे रहा हूँ, ठीक है। क्वेश्चंस में उनको हम यूज करेंगे, जो मैं फॉर्मूले आपको डेराइव करके दे रहा हूँ, तो उनको हम लोग क्वेश्चंस में यहाँ पे यूज कर लेंगे। ये सारा मैं अभी आपको एक्सप्लेन करूंगा, उसके पहले मैं 3 फॉर्मूले आपको कुछ डेराइव करके दे रहा हूँ, तो उनको आप अच्छे तरीके से समझो बस, ठीक है। देखो लिसन, हमारा जो मिरर फॉर्मूला है, मिरर फॉर्मूला क्या होता है, mirror formula. If we talk about the mirror formula, so the mirror formula is 1 upon f equal to 1 upon v plus 1 upon u. This is our mirror formula. ये होता है हमारा मिरर फॉर्मूला। अब इस मिरर फॉर्मूले में हम क्या करेंगे, दोनों साइड हम लोगों ने इसमें u से मल्टीप्लाई करा दिया, मल्टीप्लाई बाय u इन द बोथ द साइड्स। दोनों साइड हम लोगों ने u से मल्टीप्लाई करा, अपने हिसाब से करा सकते हैं, मैथमेटिक्स है ये तो सिंपल करा सकते हैं। तो हमें क्या मिल जाएगा, देखो u का मल्टीप्लाई इस 1 में होगा तो u बन जाए तो u होता है, और अपॉन में तो f है ही पहले से, u बन जा, यस सर। u बन जा, यू u v बन जा। वी। कभी सोचा था u का टेबल भी पढ़ने को मिलेगा? ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ u का मल्टीप्लाई इस 1 में हो जाएगा तो क्या लिख सकते हैं इसको, u अपॉन v, और प्लस ये u का इधर होगा मल्टीप्लाई तो u अपॉन u, ये आ जाएगा। अब u और u तो कैंसिल हो गया एक बार, ठीक है। अब इसके बाद की सिचुएशन क्या होगी कि अभी मैंने आपको पढ़ाया, जस्ट मैंने अभी पिछले स्लाइड में आपको लीनियर मैग्निफिकेशन का एक फॉर्मूला बताया था, m इक्वल टू होता है माइनस v अपॉन यू, अभी बताया जस्ट मैंने, याद होगा। अच्छा, यहाँ हम लोग अपॉन में 1 मान सकते हैं ना, my1 मान सकते हैं। अब इसको आप क्या करो, इस फॉर्मूले को रेसिप्रोकल निकाल दो, इसका उल्टा कर दो आप इस फॉर्मूले को, उल्टा, तो क्या हो जाएगा, ये 1/m हो जाएगा, ये u ऊपर चला जाएगा और ये v नीचे आ जाएगा, ऐसा हो जाएगा। पर एक और इम्पोर्टेंट चीज है कि ये जो माइनस लगा हुआ है, इस माइनस को आप यहाँ लगा दो, बात तो एक ही है। अगर जैसे आप लिख रहे हो a इज इक्वल टू माइनस बी, तो आप इसको ऐसे लिख दो, ए बी इक्वल टू माइनस, एक ही बात है ना, इससे क्या फर्क पड़ता है। तो क्या हो जाएगा, ये -1/m हो जाएगा, ठीक है। अब सुनो, ऐसा क्यों किया हम लोगों ने, ऐसा हम लोगों ने इसलिए किया क्योंकि आप देख सकते हो कि यहाँ पे u अपॉन बी है, देखो u अपॉन बी आपको नजर आया होगा, इस u अपॉन बी की जगह हम लोग ये वैल्यू पुट कर देंगे, इस u अपॉन बी की जगह हम लोग ये वाली वैल्यू पुट कर देंगे, तो u अपॉन बी को हम क्या बोल सकते हैं, -1/m, ठीक है। तो इस u अपॉन v की जगह हम लिख देंगे -1/m, बाकी सारी चीजें एज इट इज रहेंगी यहाँ पे, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, देखो u अपॉन f इज इक्वल टू, u अपॉन v को हम लिख सकते हैं -1/m, और प्लस ये 1 तो ऐसे ही रहा, 1 एज इट इज है, 1 में तो कोई दिक्कत ही नहीं है हमें, ठीक है। अब ये जो नेगेटिव टर्म है हमारे पास -1/m, इसको आप इधर शिफ्ट करा दो, तो ये पॉजिटिव हो जाएगा उस साइड जाने पे, तो 1/m इज इक्वल टू, ये 1 तो एज इट इज रहेगा। अब इस u अपॉन f को आप दूसरी तरफ शिफ्ट कराओ, इधर की तरफ, तो ये हो जाएगा नेगेटिव u अपॉन f। बताओ कोई डाउट? ओके, अब एलसीएम ले सकते हैं, तो 1/m इज इक्वल टू एलसीएम हमारा कितना आ जाएगा, f एलसीएम आ जाएगा, तो यहाँ पे ये चला जाएगा f माइनस का u तो एज इट इज रहेगा। अब इसको आप फिर से उल्टा कर दो, रेसिप्रोकल इसका कर दो, तो क्या मिल जाएगा हमको, m, तो m का फॉर्मूला हमारे पास आ चुका है f अपॉन f माइनस u, ये हमारे पास m का फॉर्मूला आ गया, ठीक है। तो ये काफी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला आ गया अपने पास, ये हमारे पास एक बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, ठीक है। जैसे क्वेश्चन में अगर आपको u गिवन है, आपको क्वेश्चन में f गिवन है, आपसे पूछ दिया उसने m बताओ कितना होगा, अब पता चला आपको सिर्फ यही वाला फॉर्मूला पता था, m इक्वल टू माइनस v अपॉन यू, आपको सिर्फ यही फॉर्मूला पता था, तो आप इसमें क्या करोगे, देखो v तो हमें यहाँ गिवन है नहीं, तो आप पहले मिरर फॉर्मूला लगा के आप v फाइंड करते, मिरर फॉर्मूला ये होता है ना
इसमें जैसे f पता है, u पता है, तो आप v यहाँ से निकाल लोगे। यस सर। फिर आप यहाँ से पहले v निकालते, फिर v निकल के आता, फिर आप इस फॉर्मूले में रखते, फिर u रखते, तब m आता। इससे अच्छा है कि u और f अगर हमको पता है तो हम डायरेक्ट इस फॉर्मूले में नहीं रख लेंगे। f पता है, u पता है, हमारे पास डायरेक्ट m आ जाएगा, v निकालने की जरूरत ही नहीं है। कितना सिंपल हो गया कि नहीं? यस सर। क्लियर हो गया इतना? यस सर। ओके, अब हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट फॉर्मूले की। अब नेक्स्ट फॉर्मूला हमारे पास क्या आने वाला है वो देखो। नेक्स्ट फॉर्मूला क्या है? जैसे हमारे पास मिरर फॉर्मूला तो ये होता है 1/f इक्वल टू 1/b प्लस 1/u। अभी हम लोगों ने यहाँ u से मल्टीप्लाई कराया था, अब हम लोग मल्टीप्लाई कराएंगे v से। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, ये v/f इज इक्वल टू, ये v/v तो क्या लिख सकते हैं इसको, चलो v/v लिख दे रहा हूँ, और ये क्या हो जाएगा v/u, तो एज इट इज रहेगा। ये v से v कैंसिल कर दो आप, कितने बार, एक बार, वन टाइम कैंसिल हो गया। क्या बचा, v/f इज इक्वल टू 1 प्लस v/u। ये क्वांटिटी यहाँ पे बची है। अब आप देख सकते हो कि अभी मैंने यहाँ आपको बताया था कि m को हम लिखते हैं क्या, माइनस का v/u। अब इस माइनस को आप उठा के अगर यहाँ लगा दोगे तो क्या फर्क पड़ता है, माइनस। तो क्या हो जाएगा, माइनस m इक्वल टू v/u। इस v/u की जगह पे आप क्या लिख सकते हो, माइनस m। ये माइनस का m यहाँ पे पुट कर दो आप, तो फॉर्मूला आ जाएगा हमारे पास v/f इक्वल टू 1 माइनस m। अब इस माइनस m को आप दूसरी तरफ शिफ्ट कराओगे तो हो जाएगा ये m इक्वल टू 1 माइनस v/f। हो गया, सिंपल है ना? अब यहाँ पे आप एलसीएम ले सकते हो, एलसीएम ले लो, कितना आ जाएगा, एलसीएम आ गया हमारे पास f, तो बन गया फॉर्मूला हमारा f माइनस v। एक फॉर्मूला हमारा ये बन चुका है, ये बन गया एक फॉर्मूला। बताओ कोई दिक्कत? तो हमारे पास दो फॉर्मूले आ चुके हैं। ठीक है, अब इन दोनों फॉर्मूले से हम क्या करते हैं कि जैसे मान लो अगर हमको क्वेश्चन में मान लो हमारे पास f गिवन है, हमारे पास v गिवन है, तो आप डायरेक्ट ये फॉर्मूला लगाओ ना, इससे m आ जाएगा आपके पास। आपको यहाँ u निकालने की कोई जरूरत ही नहीं है, इसकी कोई जरूरत नहीं पड़ी। अगर आपको f और v पता है, आप ये फॉर्मूला लगाओ, डायरेक्ट m आ जाएगा। वैसे अगर मैं ये फॉर्मूला ना बताता तो क्या होता कि f और v अगर आपको पता है तो f पता है, v पता है, इससे आप पहले u निकालते। जब u आ जाता फिर आप u को आप रखते इस वाले फॉर्मूले में। भाई मैं हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है, m इक्वल टू माइनस v/u, मैग्निफिकेशन का ये है मैन फॉर्मूला। तो अब यहाँ पे आपको u रखना होता, फिर v रखते, फिर आप कैलकुलेट करते, फिर m आता। इससे अच्छा ये है ना कि हम ये डायरेक्ट ही लगा लेंगे, फॉर्मूला आ जाएगा हमारे पास m, जो भी आना होगा। क्लियर है ना? यस सर। ओके तो ये हमारे पास दो फॉर्मूले आ चुके हैं। ठीक है, अब मैं इसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज आपको एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ, बस बिल्कुल अच्छे से समझ लेना। वो चीज अगर समझ आ गई तो आपको ये फील आ जाएगा कि मैग्निफिकेशन कब हमें पॉजिटिव लेना है और कब हमको नेगेटिव लेना है। रियल इमेज के साथ हमेशा हम जो लगा देते हैं ना, रियल एंड इन्वर्टेड, वर्चुअल एंड इरेक्ट, मतलब रियल के साथ इन्वर्टेड क्यों लगा देते हैं साथ में, कैसे पता कि इन्वर्टेड बन रही है। वर्चुअल के साथ हम जो है इरेक्ट इमेज लगा देते हैं, कैसे पता कैसे चलता है ये कि हमें ऐसा करना है ना? तो देखते हैं कैसे पता चलता है। चलो मैं बताता हूँ आपको, सुनो मेरी बात, बस गौर से सुनना, अभी सब समझ आएगा। देखो, मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला मैंने आपको बताया -v/u। हमारे पास दो टाइप की इमेजेस होती है, एक होती है रियल इमेज और एक होती है हमारे पास वर्चुअल इमेज। वी हैव टू टाइप्स ऑफ इमेजेस, ओके, वन इज रियल एंड वन इज वर्चुअल। अभी मैंने आपको नहीं बताया कि रियल के साथ इन्वर्टेड आएगा या इरेक्ट आएगा। अभी मान लो कि पता नहीं है आप नहीं जानते कि रियल के साथ इन्वर्टेड आता है, नहीं जानते आप। अब वो अपने आप यहाँ से अभी क्लियर होके आ जाएगा कि हाँ सर, अच्छा ऐसा होता है सर, इसलिए होता है ऐसा, रियल के साथ इन्वर्टेड इसलिए आता है। तो सुनो, u इज ऑलवेज नेगेटिव, u इज ऑलवेज नेगेटिव, चाहे इमेज रियल हो या वर्चुअल हो, u तो हमेशा नेगेटिव है।
अब हम लोग बात करते हैं v की। v क्या होता है? इमेज डिस्टेंस फ्रॉम द पोल ऑफ मिरर। अगर v नेगेटिव हुआ, मैं आपसे पूछ रहा हूं, ठीक है, अगर v नेगेटिव है तो इमेज किस साइड बनी, लेफ्ट में या राइट में? जैसे ये मिरर है, तो अगर मैं जैसे आपसे बोलता हूं कि v हमारा पॉजिटिव है, मान लो इनिशियली अगर हमारा v जो है वो पॉजिटिव है, मैंने ऐसे बोला, तो इमेज इसकी कहाँ पे बनेगी? ये मैं नंबर लिख रहा हूँ, 1 और 2, कौन सी साइड बनेगी, 1 पे या 2 पे? 1 पे। v पॉजिटिव है, पॉजिटिव, देखो गौर से। अरे भाई ये पोल होता है, यस सर। तो पोल के राइट साइड में पॉजिटिव हुआ ना, भूल गए? और पोल के लेफ्ट साइड में कैसा हुआ, नेगेटिव हुआ, याद आ रहा है? यस सर। ठीक है, तो अगर v पॉजिटिव है तो कहाँ पे इमेज बनी, फर्स्ट साइड या सेकंड साइड? सेकंड। सेकंड, बहुत बढ़िया, बनेगी। और अगर इमेज सेकंड साइड पे बन रही है तो इसका मतलब है कि यहाँ तो यार पॉलिश थी, यहाँ तो पॉलिश है, यस तो सर। लाइट रियल में तो उस साइड जा नहीं रही, रियल में नहीं जा सकती ना लाइट उस साइड से, यस सर। क्योंकि उस साइड तो पॉलिश है। लेकिन तब भी इमेज अगर इस साइड बन रही है, अगर इमेज तब भी इधर बनी, तो वो इमेज रियल होगी कि वर्चुअल होगी? वर्चुअल। बहुत बढ़िया, बात आ गई समझ? यस। तो अगर v पॉजिटिव हुआ, अब सुनो एक बार, ठीक है, मेरी बात गौर से सुनना, अगर v पॉजिटिव हुआ तो इमेज बनेगी राइट साइड में, और अगर इमेज बन रही राइट साइड में तो उस तरफ तो मिरर में पॉलिश होती है, लाइट उस तरफ रियल में तो जा नहीं रही, तो इसका मतलब इमेज कैसी होगी, वर्चुअल। तो वर्चुअल इमेज के लिए v कैसा होगा, कैसा होगा? पॉजिटिव। पॉजिटिव। क्लियर हुआ, हो पाया कि नहीं हो पाया, ये बताओ। ओके, अब हम बात करते हैं रियल इमेज के लिए। तो रियल इमेज किस साइड बनेगी, 1 या 2? कहाँ पे? 1 पे। 1 पे। तो अगर इमेज 1 साइड वाली पे बन रही है, तो इसके लिए यहाँ पे डिस्टेंसेस कैसी है सारी, देखो आप कैसी डिस्टेंसेस है। पॉजिटिव। अरे क्या बोल रहे हैं यार, थोड़ा कूल हो जाओ पहले, आराम से, घबराओ नहीं, मैं बहुत दूर हूँ, पीट नहीं पाऊंगा, ठीक है? डिजिटली कैसे पीटूंगा बताओ, ऐसे भेजू ऐसा? मैं ये पूछ रहा था यार कि अगर इमेज हमारी इस साइड में बनी, ये इस साइड बन रही है अगर इमेज, तो यहाँ पे हमें डिस्टेंस जो लेनी है वो कैसी है डिस्टेंस, देखो ना ये क्या लिखा है, नेगेटिव। नेगेटिव। बात आ रही समझ? अरे यार देखो, यस। सिंपल सी बात इतनी है बेटे कि ये अगर एक्सिस है, तो ये अगर ओरिजिन होता है तो ओरिजिन के राइट साइड पॉजिटिव लेते हैं और ओरिजिन के लेफ्ट साइड नेगेटिव लेते हैं, बस बात खत्म हो गई। ऊपर कैसा लेते हैं, पॉजिटिव लेते हैं, और नीचे कैसा लेते हैं, नेगेटिव लेते हैं। ठीक है, यस। तो अभी फिर से सुनो एक बार, यही याद कराना है, ये तो मेरा टारगेट ही है। अगर राइट साइड इमेज बनी, अगर राइट साइड इमेज बनी, तो इमेज की डिस्टेंस पॉजिटिव होगी या नेगेटिव होगी? पॉजिटिव। वेरी गुड। और अगर इमेज की डिस्टेंस पॉजिटिव है तो इमेज रियल है या वर्चुअल है? वर्चुअल। बहुत बढ़िया। अब और बताओ कि अगर इमेज की डिस्टेंस नेगेटिव है तो इमेज राइट साइड बनी या लेफ्ट साइड बनी? लेफ्ट। वेरी गुड। और अगर इमेज लेफ्ट साइड बनी तो वो इमेज रियल है या वर्चुअल है? रियल। बहुत बढ़िया। तो मैं समझ चुका हूं कि रियल इमेज के लिए v हमारा कैसा होगा, नेगेटिव। अब बताओ, इतनी बात में कोई डाउट? नो सर। मेरे ख्याल से अभी क्लियर है, यस सर। एवरीथिंग इज क्लियर। यस सर। ठीक है,
समझ आ गई ना अच्छे से? यस सर। ठीक है, वेरी गुड। तो ये तो हो गया हमारा इमेज का कॉन्सेप्ट कि वी हमें पॉजिटिव कब लेना है, नेगेटिव कब लेना है। क्लियर हो गया? अब आप इसको अपने आप से देखो, अब आप इसको याद करने की आपको जरूरत नहीं पड़ेगी ना। अब आप इसको बस आंखें बंद करके ऐसे समझ लोगे कि जैसे ये मिरर रखा है, ऐसे मिरर यहाँ पे पॉलिश है, तो अगर वी पॉजिटिव है तो वी पॉजिटिव होने का मतलब ऐसे सोच सकते हो ना, जैसे मैं सोच रहा हूँ कि वी पॉजिटिव है तो इसका मतलब इमेज बनी होगी राइट साइड में, और राइट साइड में तो पॉलिश होती है मिरर में, तो उस साइड रियल में तो लाइट जा नहीं सकती। जब लाइट रियल में उधर जा नहीं सकती तो फिर इमेज होगी वर्चुअल। ठीक है, ऐसे आप समझ लोगे ना? क्लियर हो गया इतना? यस सर। अब बात करते हैं हम लोग मैग्निफिकेशन की। अब सुनो, मैग्निफिकेशन जो होता है उसका फॉर्मूला लिखते हैं हम लोग माइनस का वी अपॉन यू। ये मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला लिखते हैं। ठीक है, अब अगर हम लोग रियल इमेज की बात करें तो ये देखो, ये वाला माइनस तो गॉड गिफ्टेड है। गॉड गिफ्टेड मतलब तो ऑलरेडी है ही फॉर्मूले में, गॉड गिफ्टेड मतलब। और अगर हम लोग वी की बात करते हैं तो रियल इमेज के लिए वी पॉजिटिव है कि नेगेटिव? नेगेटिव। नेगेटिव। तो माइनस का वी हो जाएगा। और यू तो हमेशा ही नेगेटिव होता है, चाहे रियल हो चाहे वर्चुअल हो, यू तो ऑलवेज नेगेटिव है। तो क्या लिखोगे? माइनस का यू। अब देखो आप, माइनस से ये माइनस कैंसिल हो गया, यस सर। लेकिन तब भी एक माइनस रह गया। ये माइनस किसी से कैंसिल नहीं हुआ जो रह गया माइनस। तो इसका मतलब है कि मैग्निफिकेशन हमारा कैसा आ गया? नेगेटिव आ गया। आई बात समझ? यस सर। कोई डाउट? नो सर। ओके, तो क्लियर है। तो अब हम यस। समझ चुके हैं कि रियल इमेज के लिए मैग्निफिकेशन कैसा होता है? नेगेटिव। कैसा होता है? नेगेटिव। मेरे ख्याल से अभी अब समझ आ रहा होगा। ठीक है, अब हम वर्चुअल इमेज की बात कर लेते हैं। तो वर्चुअल इमेज के केस में अगर हम बात करते हैं मैग्निफिकेशन की, तो क्या हो जाएगी बताओ? देखो, फॉर्मूला तो वही है ना हमारे पास, माइनस वी अपॉन यू। अब ये वाला माइनस तो गॉड गिफ्टेड है, तो ये तो एज इट इज रहना है। वी कैसा है? वी कैसा है? प्लस पॉजिटिव। पॉजिटिव। और यू कैसा है? नेगेटिव। तो देखो आप, ये माइनस से ये माइनस कैंसिल हो गया, ये माइनस से ये माइनस कैंसिल हो गया कि नहीं हो गया? यस सर। तो बचा क्या? बी अपॉन। पॉजिटिव बचा बस। पता है, यू और वी तो कुछ भी होंगे, नंबर होगा, लेकिन फाइनली वैल्यू तो पॉजिटिव आएगी ना निकल के। यस। तो अभी हम लोगों ने ये सीख लिया है कि वर्चुअल इमेज की बात अगर हो रही है तो हम समझ जाएंगे कि हमारा जो एम है वो कैसा रहेगा? पॉजिटिव। मेरे ख्याल से ये चीज आपको याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मेरी बात आपको समझ आ गई पूरी? हाँ। तो रियल इमेज के लिए हमें पता है कि मैग्निफिकेशन कैसा होता है? नेगेटिव होता है। और मैग्निफिकेशन का एक और फॉर्मूला जो अभी हम लोगों ने लास्ट स्लाइड में पढ़ा है, एच आई अपॉन एच ओ, हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। ठीक है। अब इन जनरल जैसे हम लोग ये मानते हैं ना कि ऑब्जेक्ट को हम लेफ्ट साइड रखते हैं मिरर के, इन जनरल ऐसे ही तो मानते हैं, यू इज ऑलवेज नेगेटिव मानते हैं हम एक चीज और भी मानते हैं कि ऑब्जेक्ट को हम प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर रखते हैं। जैसे मान लो कि ये प्रिंसिपल एक्सिस है, ये आपको दिख रहा है ना, ये प्रिंसिपल एक्सिस है। तो ऑब्जेक्ट को आप प्रिंसिपल एक्सिस पे कहाँ रखोगे, ऊपर या नीचे? आप हमेशा ऑब्जेक्ट को ऐसे रखोगे ऊपर। समझ गए? यस सर। तो ऑब्जेक्ट को आप हमेशा ऊपर रखोगे। जैसे मान लो ये मिरर है, ये मैंने देखो 3D बना दिया अब आपके लिए। ये मेरा हाथ है, वो मिरर है, इसमें ये वाला पॉलिश पोर्शन है, तो ये हो गया मिरर। ये लाइन जो है ये मेरा पेन है, ये वाला पेन जो है वो क्या है? ये है हमारी प्रिंसिपल एक्सिस ऐसे। ठीक है। और ये वाला जो पेन है ये क्या है? ऑब्जेक्ट है। ठीक है। तो ऑब्जेक्ट कहाँ रखी है? देखो, एक तो रखी है वो लेफ्ट साइड में, इस मिरर के लेफ्ट में ही तो रखी है, तो इसके लिए यू हो गया नेगेटिव हमारा। और कहाँ रखी है? ऊपर रखी है। ऊपर अगर रखी है तो साइज ऑफ इमेज जो हम लेंगे या हाइट ऑफ इमेज जो लेंगे, तो सॉरी ऑब्जेक्ट, तो हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट हमें इन जनरल कैसा लेके चलना है? पॉजिटिव।
क्योंकि ऑब्जेक्ट को ऊपर रखेंगे ना अपन, नीचे थोड़ी रखते हैं। तो हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट जो होगा वो हमारा कैसा हो जाएगा, पॉजिटिव। अब सुनो क्या हुआ, हुआ ये है कि एच आई अपॉन एच ओ इक्वल टू कितना हो जाएगा, इक्वल टू हो गया हमारा नेगेटिव, क्योंकि आप देख सकते हो ना, इतना देखो, यस सर। एच आई अपॉन एच ओ हमारा नेगेटिव है ना। यस सर। अब यहाँ पे एच ओ कैसा है हमारा, पॉजिटिव है, ये देखो एच ओ कैसा है, पॉजिटिव है। तो एच आई अपॉन प्लस एच ओ इज इक्वल टू नेगेटिव। तो हम लिख सकते हैं एच आई इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ एच ओ, ये हो जाएगा। यस सर। बताओ होगा कि नहीं होगा। यस सर। ठीक है, तो यहाँ पे जो हाइट ऑफ इमेज आया है वो कैसा आ गया, नेगेटिव। अगर हाइट, इमेज की हाइट नेगेटिव है तो इमेज कहाँ बनी होगी, ऊपर या नीचे, नीचे। नीचे बनी होगी। और अगर इमेज नीचे बनी है तो हम उसको क्या बोलेंगे, सॉरी इरेक्ट बोलेंगे या इन्वर्टेड बोलेंगे, इन्वर्टेड। इन्वर्टेड। इसीलिए रियल के साथ, इसीलिए रियल के साथ हमेशा इन्वर्टेड आता है। बात आई समझ। यस सर। इन्वर्टेड क्यों आता है, क्लियर हो गया होगा मेरे ख्याल से, क्योंकि हाइट ऑफ इमेज जो है वो नेगेटिव आ जाता है यहाँ। ठीक है, और मैंने आपको जो जो भी मैंने आपको इमेज फॉर्मेशन बताए थे, इमेज फॉर्मेशन मैंने आपको जो भी यहाँ पे बताए हुए थे, आप देख सकते हो जो भी मैंने इमेज फॉर्मेशन यहाँ पे बताए हैं, मैं देखो बताता हूँ। ये है जैसे पहला वाला, ठीक है। तो इस वाले पहले वाले में आप इमेज फॉर्मेशन में आप देख सकते हो कि चलो ये तो ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे रखी थी, अलग केस हो गया। इस वाले में आप देखो, यहाँ पे ये ऑब्जेक्ट देखो रखी है, ये ऊपर की तरफ ऑब्जेक्ट कहाँ रखी है, ऊपर की तरफ रखी है ऑब्जेक्ट, ये ऑब्जेक्ट रखी है ऊपर की तरफ, और इसकी इमेज ये बनी नीचे की तरफ, ये बनी नीचे इमेज। तो ये इमेज रियल है या वर्चुअल है, बताओ। रियल। रियल है। और रियल के साथ अभी इसमें क्या और ऐड हो जाएगा, इन्वर्टेड। इन्वर्टेड क्यों, क्योंकि इमेज बनी नीचे की तरफ, इमेज कहाँ बनी, नीचे की तरफ। समझ आ गई अब। अब आप इस वाले केस में देखो, सेकंड वाले केस में आप देख सकते हो। तो सेकंड वाले केस में अभी बता दो मेरे को कि ऑब्जेक्ट रखी थी ऊपर, ये रखी थी ऑब्जेक्ट ऊपर, और इमेज देखो इसकी नीचे की तरफ बनी है, इमेज कहाँ बन गई, नीचे की तरफ। अब बताओ ये इमेज रियल है या वर्चुअल है। वर्चुअल। अरे वर्चुअल इमेज तब बनेगी भाई जब राइट साइड में इमेज बनेगी। वर्चुअल नहीं हुई। वर्चुअल तो तब होगी ना जब इमेज राइट में बनेगी। पॉलिश्ड सरफेस की तरफ जब इमेज बनेगी तब वो वर्चुअल होती है, बस इतना याद कर लो अब तो। यस सर। पॉलिश्ड सरफेस की तरफ अगर इमेज बनती है तो वो वर्चुअल होगी, अदरवाइज रियल है। तो ये इमेज पॉलिश्ड सरफेस की तरफ बनी है क्या, नो सर। तो फिर ये इमेज कैसी है, रियल या वर्चुअल, रियल। कैसी है, रियल। रियल। और इमेज बनी कहाँ पे, नीचे या ऊपर, नीचे। नीचे। तो रियल के साथ साथ और क्या हो गया इसमें, इन्वर्टेड, ये देखो लिखा है, ये देखो दिख रहा है। यस सर। अब हम इस केस की बात करते हैं, नेक्स्ट केस है। ऑब्जेक्ट देखो कहाँ रखी है, ऊपर, कहाँ रखी है, ऊपर। इमेज कहाँ बनी है, नीचे। नीचे। तो ये इमेज रियल है या वर्चुअल है, रियल। रियल। और नीचे बनी है तो इसलिए देखो रियल और इन्वर्टेड साथ में आ गए। बात समझ गए। यस सर। नेक्स्ट स्लाइड में देखो, इस केस में आप देख सकते हो कि ऑब्जेक्ट कहाँ रखी है, ऊपर। ऊपर। लेकिन ये जो लाइट आ रही है वो नीचे की तरफ आ रही है, यानी इमेज कहाँ बनेगी इसमें, नीचे। कहाँ बनेगी इमेज, कहाँ बनेगी इसमें, नीचे। मतलब बनेगी, जगह इन्फिनिटी है लेकिन नीचे ही बनेगी ना, यस सर। बनेगी इसमें नीचे इमेज बनेगी। तो ये यस सर। इमेज रियल होगी कि वर्चुअल होगी, रियल। रियल। तो देखो ये क्या लिखा है, रियल एंड इन्वर्टेड, क्या लिखा है। रियल एंड इन्वर्टेड। बात आ गई समझ। यस सर। अब ये केस देखो लास्ट वाला, ऑब्जेक्ट कहाँ रखी है, ऊपर। इमेज कहाँ बन गई, राइट साइड में ऊपर।
तो राइट साइड में इमेज बनने का मतलब इमेज रियल है या वर्चुअल है? वर्चुअल। वर्चुअल। और ऊपर बनी है, ऑब्जेक्ट जहां रखी थी वहीं बन गई, तो ये इरेक्ट है या फिर इन्वर्टेड है? इरेक्ट। देखो ये क्या लिखा है, वर्चुअल एंड इरेक्ट। बात आई समझ? यस। क्लियर हो गया अब? यस। अब बताओ मेरे को कोई भी डाउट हो नो सर। तो अब आप समझ लो ये कि अगर m पॉजिटिव है तो लेस देन 1 इट इज कॉन्वेक्स मिरर, m पॉजिटिव है मोर देन 1 तो कॉनकेव मिरर। भाई कॉनकेव मिरर जो होता है, मैंने आपको कल बताया था कि कॉनकेव मिरर जो होता है वो बड़ी इमेज बनाता है। कॉनकेव मिरर कैसी इमेज बनाता है? बड़ी इमेज बनाता है, याद है? यस सर। तो कॉनकेव मिरर बड़ी इमेज बनाता है और कॉन्वेक्स मिरर छोटी इमेज बनाता है। इसीलिए हम गाड़ियों के साइड मिरर जो होते हैं वो कॉन्वेक्स लेते हैं, है ना? तो यस। अगर हाइट ऑफ इमेज ऑब्जेक्ट से ज्यादा है, जैसे मान लो कि ऑब्जेक्ट का हाइट कितना है, जैसे मान लेते हैं, एक मिनट रुकना जरा। हाँ सुनो, जैसे अगर हम लोगों ने ऑब्जेक्ट का हाइट माना 2 सेंटीमीटर है और अगर आपका इमेज का हाइट आ गया मान लो 5 सेंटीमीटर, तो यहाँ आप जो मैग्निफिकेशन निकालोगे वो 1 से छोटा आएगा या बड़ा आएगा? बड़ा। बड़ा आएगा ना। इसीलिए तो ये देखो क्या लिखा है, पॉजिटिव एंड मोर देन 1। मोर देन 1, 1 से बड़ा है। तो किसके लिए है? ये कॉनकेव के लिए है, ठीक है? यस। और कॉन्वेक्स इमेज कैसी बनाता है? छोटी इमेज बनाता है, डिमनेस्ट इमेज बनाता है। तो यहाँ पे देखो क्या लिखा है, लेस देन 1, लेस देन 1। कौन सा मिरर है? कॉन्वेक्स मिरर है। अब बताओ मेरे को क्लियर हुआ या नहीं हुआ? यस सर। एवरीथिंग इज क्लियर और नॉट? यस सर। अब कुछ भी बचा है इसमें? अगर नहीं आया हो समझ में तो पूछ लो, बताओ। नो सर। मेरे ख्याल से कुछ नहीं बचा अब इसमें समझने के लिए। यस सर। क्लियर हो गई ना बात? यस सर। ठीक है। तो यहाँ पे मैंने ये सारी चीजों को लिख दिया है, आप समझ सकते हो कि अगर हाइट ऑफ इमेज ज्यादा है तो ऑब्जेक्ट कैसी इमेज कैसी होगी, इनलार्ज या मैग्नीफाइड कह देते हैं उसी को हम लोग। और अगर ऑब्जेक्ट का हाइट ज्यादा है, इमेज छोटी बन गई, तो उसको हम लोग कह देते हैं डिमिनिश्ड इमेज। कैसा है? डिमिनिश्ड इमेज। क्लियर हो गया? यस सर। और अगर हम प्लेन मिरर की बात करते हैं तो प्लेन मिरर के केस में क्या हो जाता है कि मैग्निफिकेशन +1 मतलब 1 रहेगा हमेशा। क्यों रहेगा? क्योंकि प्लेन मिरर में m इक्वल टू हम फॉर्मूला लिखते हैं HI/HO। तो इसमें क्या होता है कि हाइट ऑफ इमेज और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इक्वल रहता है प्लेन मिरर में। तो इस केस में ये जब इक्वल है तो कैंसिल हो जाएगा एक बार, तो m की वैल्यू क्या आ जाएगी यहाँ पे? 1 आ जाएगी। और मेरे को ये बताओ कि प्लेन मिरर कैसी इमेज बनाता है, रियल या वर्चुअल? राइट साइड में बनी थी इमेज या लेफ्ट साइड में बनी थी? याद करो, मैंने कल ही बताया। राइट साइड में। वेरी गुड। तो राइट साइड में जो इमेज बनती है वो रियल होती है, वर्चुअल होती है? वर्चुअल। वेरी गुड। वर्चुअल इमेज के लिए v पॉजिटिव होता है कि नेगेटिव होता है? पॉजिटिव। बहुत बढ़िया। और अगर v पॉजिटिव है तो मैग्निफिकेशन पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव होगा? पॉजिटिव। बहुत बढ़िया यार। तो बस बता दो मुझे कि m की वैल्यू यहाँ +1 है या -1 है? +1। अरे वेरी गुड, वेरी गुड। मेरा पढ़ाना सफल हो गया, चैप्टर फिनिश हो गया। ये चैप्टर फिनिश हो गया अपना, कॉन्ग्रेचुलेशन।